So let's begin with the discussion of mock CAT 2 point section. I guess we can start with the selection of question first. एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से questions ideally you should have selected and the ones you have rejected or could have skipped. Starting with question number 1, alligation mixture. I guess you could have selected it. Part 1 में डाल दीजिए. Section question number 2, something from functions. Function नहीं किया हुआ है. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 3, profit loss. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 4, something from search. But I guess ये question बहुत बार किया हुआ है. बहुत बार मतलब you should have ideally attempted it. So part 1 में डाल दीजिए. Question number 5, something from SIC part 1 में डाल दीजिए. Question number 6, number system से related या कुछ puzzles type का लग रहा है. You could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Number system we haven't covered yet. Geometry part 3 में डाल दीजिए. Question number 8, seems like averages से related है कुछ, तो you could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Again, कुछ तो number system से related लग रहा है. You could have skipped it. Part 2 में डाल दीजिए. 3 में डाल दीजिए. Sorry. Again, quadratic equation. Ideally, you could have attempted it, but quadratic equation algebra है, तो एक बार छोड़ता हूँ. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 11, geometry part 3 में डाल दीजिए. Question number 12, permutation combination से related लग रहा है. Skipped it. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 13, relations. Again, could have skipped it. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 14, log से related है. ठीक है, और ऐसे बहुत टेक्निकल लग नहीं रहा. So you could have attempted it. Log as such अपने difficult भी नहीं है ज्यादा, तो you could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 15, time and work. मेरे हिसाब से you could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 16, number system से related है, you could have skipped it. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 17, you could have skipped it because geometry है. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 18, coordinate geometry है. Skip it. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 19, something from I guess number system. So could have skipped it. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 20, geometry है. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 21, I guess number system है. Skip it. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 22, alligation mixture. You could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Done. Part 1 में कितने हैं? इस बार ज्यादा आ रहे होंगे मेरे हिसाब से. 8 और 3 में थोड़े ज्यादा हैं. बहुत ज्यादा. हाँ, 3 में काफी ज्यादा है. सेकंड कैटेगरी में एक ही है. बराबर. चलो बढ़िया है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बताना है किसी को? एनीवन? नो सर. किसी को No, नीड है sir. तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलेंगे. नो. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड. सॉरी, थर्ड. हाँ सर, ये मार्क्ड है ना, जितने 8 तक तो सेम है. तो आपको बोलने में दिक्कत हो रही है नहीं सर. तो बोलो ना मैडम. फिर हाँ जी. बताना है किसी को? एनीवन? यस सर. यस, देख लेते हैं. So the question is, if a dealer marks up the cost by of an article by 40%, gives a discount of M by 4% on mark price, he gets a profit of 5%. He marked up the cost price by M by 2% and gives a discount of M by 6. सबसे पहले तो M निकालने का है. CP से स्टार्ट कर दूं क्या? यस सर. यार क्या था? CP दिया 100 ले रहा हूँ. प्रॉफिट कितना है? 40. अच्छा, प्रॉफिट छोड़ने का. एक बार प्रॉफिट छोड़ने का. मार्क्सअप है, तो ये मार्कअप है आपका 40%, है ना? एक सेकंड रुक जाइए, इसको हटाओ से. हाँ, मार्कअप कितना है? 40%. तो एमपी कितना हो गया? 140. और डिस्काउंट कितना है? M by 4 on mark price. M by 4% ऑफ मार्क प्राइस. इतना डिस्काउंट दिया आपने, राइट? हाँ. यहाँ से चलते हैं. प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हाँ 5%. तो एसपी कितना हो गया? 105. तो डिस्काउंट कितना दे दिया? 35. तो इक्वल टू 35.
दिस इज 1, दिस इज 4, 4 से 4 कैंसिल, m का वैल्यू कितना आ गया? 100. यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? Nice, sir. Had No, he sir. marked up the cost of the article by m by 2%, m by 2 मतलब 50, अगर उसने 50% से मार्कअप लिया होता तो mp कितना होता? 150. And given a discount of m by 6, m by 6 मतलब 100 by 6, 100 by 6 of this is 1 uh, by 6. 1 by 6 of 150, that is 25 rupees. 25. So he must have sold the article for 150 minus 125. so he must have gained 25 rupees. Yes, sir. Got it. clear है? चले आगे? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट फोर्थ था, फोर्थ, हाँ किसी को बताना है क्या? देखो ये क्वेश्चन एलजेब्रा से, स्टिल आई सिलेक्टेड इट बिकॉज कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 10 बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके होंगे। अगर किसी का डाउट है तो कैन आस्क मी फॉर दैट, एंड प्लीज डोंट गो फॉर द सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन में लॉग और पता नहीं क्या क्या कर रखा है। किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी। है? नो सर. नहीं, किसी का भी नहीं है ना? No, sir. नो सर। बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट फिफ्थ, बताने का है किसी को? No, sir. नो सर। गोइंग अहेड। नेक्स्ट एट, 8 बताने का है किसी को? यस सर। Yes, sir. ये बताओ. चलो we'll just check it out. मतलब सर ऑप्शन के अलावा वाला मेथड। इनके अलावा भी देख लेते हैं मैडम। Shopkeeper wants to sell 40 books. If he sells books at 156 per book, he can sell all the books. But on an average, an increase of the price of the book by 6 will leave the shopkeeper with one unsold copy with no possibility of reselling it. तो इसका मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कितना होगा? देखो, आपके पास टोटल कितनी बुक्स है 40. और पर प्राइस आप 156 बेचते हो। हम्म, अगर आपने 156 से 6 रुपीज का इंक्रीमेंट किया, 162 पे आए, तो 40 की जगह कितना सेल कर पाओगे? 39, अगर 162 से और 6 इंक्रीज किया, 168 पे आए, तो कितना कर पाओगे? 38। 38. तो अगर ऐसे 6 n टाइम्स इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड 40 माइनस n रह जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। नो No, सर। sir. पक्का? और ये मेरे हिसाब से आपका टोटल सेलिंग प्राइस है, हाँ या ना? हम्म, इसका मतलब इसको मैक्सिमाइज करने का, डिफरेंशिएट कर दो। इसको पहले ओपन करो, 156 इंटू 40 हटा दो, माइनस 156n प्लस 240n माइनस 6n स्क्वायर, हाँ है ना? यस सर। डिफरेंशिएशन बोलो 156 इंटू 40 का, वन, सॉरी, 156 इंटू 40 का डिफरेंशिएशन जीरो। होता ही नहीं है ना सर. बता दो. सर जीरो होएगा ना कांस्टेंट? 156n का, माइनस 156 240n का, प्लस 240, 6n स्क्वायर का, 12n। तो 12n इक्वल टू मेरे हिसाब से हो गया 84 और n इक्वल टू 7 हो गया, हाँ है ना? हाँ, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल दो। नो No, सर। sir. एक सेकंड का टाइम देना यार, ये एक क्वेश्चन देंगे वहां पर कहीं पे डला हुआ है क्या अपना आईडी पासवर्ड? हाँ सर, ग्रुप पे है। मिल गया मिल गया मिल गया। n इक्वल टू 7 आ गया, हाँ जी सर। n को 7 पुट कर दो, हाँ 198 बैठ गया। 198 बैठ। क्लियर है? हाँ Yes, sir. सर। चले आगे। यस सर। चलो ठीक है, जस्ट अलाउ मी 1 मिनट। हाँ जी सर।
ओके गोइंग अहेड। 8 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? 14th. किसी को बताना है? नो सर। No, sir. किसी का भी डाउट नहीं है? पक्का ना? चले आगे। हाँ जी sir. नेक्स्ट 15th. बताना है किसी को? नहीं। Yes sir. Yes यस sir. सर। No sir. दीक्षा, दीक्षा, अरे उसका दीक्षा, आपको वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल है मैम? हाँ सर है ना. आपकी वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल नहीं है। मेरा नहीं है. बाकी सबको दीक्षा की वॉइस ऐसी आ रही है क्या जैसे मेरे को आ रही है? हाँ सर, हाँ हाँ सर, सर आप जैसे बढ़िया लग रही है बिल्कुल। मैडम, ऐसे ही एक दो बार और बोल दो। सर मैंने अब मोबाइल अब आ रही है सही से. अभी बढ़िया है, बढ़िया। हाँ चलो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। टू टीम्स आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट and their productivities are different. They work together and two-thirds of the project is completed by the first team and the rest by the second team. Then the entire work would be completed in 4 days. How long did it take for the slower team to complete the project separately? फिर इतना ही दे रखा और कितनी दे रखा? नहीं सर, इतना ही है। चलो कोशिश करता तो टीम 1 डेली का x यूनिट करती है, टीम 2 डेली का y यूनिट करती है। They work together and two-thirds of the project is अरे बहुत है इतना तो यार। Two-thirds of the project is completed by the first team and the second team. यार एक छोटी सी बात बता दो मुझे, ये पूरा काम टीम 1 ने 2/3 किया और टीम 2 ने 1/3 किया, मतलब इनका एफिशिएंसी रेशियो क्या है? पूरे काम का जो 2:1. पार्टिसिपेशन 2:1 है, पूरे काम 2:1. पे जो पार्टिसिपेशन है टीम 1 का 2/3 है और उसका 1/3 है, मतलब 2:1 है। तो टीम 1 अगर डेली का 2 यूनिट करती है तो टीम 2 डेली का 1 यूनिट करती है, हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर। दोनों मिला के एक दिन में कितना करती है? 3 units. 3। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 4 दिन में पूरा कर दिए तो। 12 units. और अगर टीम 1 अकेली काम करती डेली के 1 यूनिट के हिसाब से तो कितना दिन लेती? अच्छा सर, हाँ 12 डेज। क्या टीम बताओ? 2 का पूछा. किसका? स्लोअर टीम का पूछा है ना मैम? हाँ टीम 2. हाँ तो टीम 2 डेली का 1 यूनिट कर रही है, 12 यूनिट के लिए 12 दिन लेगी। हाँ वो आपने सर टीम 1 बोल दिया था तो इसलिए. अरे तो बोलने में क्या जाता है, बोलने में तो कुछ भी निकल जाता है। आंसर समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो ठीक, गोइंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद नेक्स्ट बोलिए जल्दी से। 22. 22 से पहले कुछ भी नहीं है? नहीं. क्या बात है? चलो बताना है किसी को? नहीं सर. नो सर। किसी को पूछना है तो पूछ लेने का जल्दी से, नहीं तो आगे चलेंगे। नो सर. पक्का? चलो बढ़िया है। सो ये तो सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। 2 पे आ जाइए। 2 में कौन सा सेक्शन छुड़वाया था? 10th. क्वाड्रेटिक का है। ये किसी को बताना है? देखो मैंने क्वाड्रेटिक देख के छुड़वाया, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ सर, मतलब नहीं है हो गया. डाउट. किसी सर को इसके अंदर सिर्फ एक चीज नहीं आई, एम और एन की वैल्यू कैसे निकलेगी? ऐसे निकल जाएगी मैडम अभी। एक रूट 3+√2 है, दूसरा क्या होगा? 3 - √2। और इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0 से। हाँ तो x² -9 प्लस तो जब आपने ऐसा बोला x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, मतलब x² का कोफिशिएंट आपने अपनी इच्छा से 1 ले लिया ना? x मतलब कोफिशिएंट 1 अपनी मर्जी से क्यों ले लिया? तभी तो सर मैंने एक बार करके बता दो ये. ठीक है मैडम, एक बार करके ही बता दो। देखिए इक्वेशन 1, रूट्स है 3+√2, 3 - √2, सम हो गया 6, प्रोडक्ट हो गया 7। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर. नो सर। इक्वेशन बन गई x² माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत?
नो सर। नहीं। अच्छा, जस्ट अलाउ मी 1 मिनट, एक अर्जेंट कॉल है, 2 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। चलो यहाँ तक क्लियर है, चले आगे। यस सर। इक्वेशन 2 पे चलते हैं। रूट्स हैं क्या क्या हैं, 2 माइनस रूट 7, तो एक हो गया 2 प्लस रूट 7, तो सम हो गया 4, प्रोडक्ट हो गया -3। यस सर। इक्वेशन हो गया x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब इसको नो कंपेयर सर। किया तो m आ गया 1, n आ गया -6 और p आ गया 7। सिमिलरली a आ गया 1, b आ गया -4 और c आ गया -3। अब पुट कर दो, वैल्यू आंसर आ जाएगा। अब इसका आपका मतलब क्वेरी ये था, आपका क्वेरी ये था कि इसमें m को 1 कैसे ले लिया, बराबर? तो यस सर। थोड़ा सा याद कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये अपना बेसिक इक्वेशन होता है। यस सर। यस सर। अपन ने क्या किया था, इसको a² से a से डिवाइड किया था, तब ये फॉर्म आया था। यस फिर सर। इसको अपन ने माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए लिखा था, तब ये फॉर्म आया था। और फाइनली इसको अपन ने ऐसा लिखा था। तो इस फॉर्म में लाने के लिए बाय डिफॉल्ट इसके कोफिशिएंट को 1 करना ही पड़ा था, तभी तो ये फॉर्म आया था। अगर 1 नहीं करोगे तो ये फॉर्म आएगा ही नहीं ना। यस सर। ओके, गॉट इट सर। समझ में आया? ये पूरा आया कैसे था वो बता दिया, अभी तो क्लियर है कि जब भी x² माइनस एस प्लस पी इक्वल टू 0 लगाओगे, तब x² का कोफिशिएंट बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 ही लेके चलेंगे। ठीक है सर, क्या? गॉट इट। चलो ग्रेट, गोइंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 10 तक वी आर डन। नेक्स्ट, सेकंड। अब ये आ गया अपना थर्ड स्लॉट, राइट, थर्ड पार्ट। हाँ। ठीक है, बताना है किसी को? हाँ सर। बताओ, चलो देख लेते हैं। एफ दे रखा है x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, और gx दे रखा है e की पावर x प्लस x माइनस 1, और hx दे रखा है f ऑफ gx। ये यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। f ऑफ e की पावर x प्लस x माइनस 1, यहां तक कोई दिक्कत? नो नहीं। सर। ये हो गया e की पावर x प्लस x माइनस 1 का क्यूब -2 e की पावर x प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस e की पावर x प्लस x माइनस 1।
+1, यहाँ तक कोई वन दिक्कत हाँ नो सर नहीं? अब ऐसा पूछा है hx holds good for, मतलब ये वैल्यू जो अपना hx फंक्शन है ना, ये किन वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड है? अब Okay. लॉजिकली थिंक ओवर इट, आपको इस पूरी इक्वेशन में ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है क्या जो इस डेफिनेशन को डिनाई कर दे? एज एन कहीं पे कोई रूट आ जाए तो अपन को श्योरिटी लेना पड़ता है कि यार इसके अंदर जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। कहीं पे कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाए, वी नीड टू बी श्योर कि इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहीं पे कोई लॉग आ जाए तो वी नीड टू बी श्योर कि इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, इसका जो बेस होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ये सारा श्योरिटी अपने को चेक करना पड़ता है। ये जो क्यूबिक हाँ इक्वेशन आपको कुछ चेक करने की जरूरत है? नहीं नहीं। मतलब ये सारी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड है। हाँ आंसर क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा वो सेकेंडरी है, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अपने से पूछा डिफाइंड कब है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। हाँ यस सर। गॉट इट इफ Yes, यू sir. रिमेम्बर लास्ट क्लास में ही एक क्वेश्चन आया था, लास्ट टेस्ट में ही, जहाँ पे -4 से 4 एक्सक्लूडिंग 3 ऐसा आंसर भी आया था। हाँ यस हाँ सर सर। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो रूट के अंदर अपने को चेक करना पड़ेगा कि नेगेटिव ना है। तो ये जो प्रॉब्लम आएगा ना, ये जब कुछ एबनॉर्मल ऑपरेशन होगा तब आएगा, जैसे रूट हो गया, जैसे लॉग हो गया, जैसे फ्रैक्शन हो गया, ऐसा कुछ होगा तो आएगा। ये तो नॉर्मल पॉलिनोमियल है अपना, डिग्री 3 पॉलिनोमियल है, कुछ भी वैल्यू पुट करो डिफाइन तो होगा ही होगा ना। हाँ यस सर ये चीज क्लियर है? यस सर गॉट गोइंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट आउट। 6th। बताना है किसी को? यस सर। बताना है सर। देखिए ऐसा दे रखा है, इट इज पॉसिबल टू अरेंज। पहली बात तो इट्स अ 4/3 का ग्रेड, 1 2 3, 1 2, यहाँ पे 1 भर रखा है आपने, यहाँ पे 9 फिल कर रखा है, यहाँ पे 14 फिल कर रखा है और यहाँ पे 15 फिल कर रखा है। ऐसा बोल रखा है इट इज पॉसिबल टू अरेंज 8 ऑफ द 9 नंबर्स। ये 9 नंबर्स है जिनमें से 8 को फिल करना इन द वैकेंट स्पेस ऑफ 3/4 array shown so that the average of numbers in each row and column is the same integer। ये समझ में आएगा? मतलब ये जो रिमेनिंग वैल्यूज बची है ना आपके पास, 9 वैल्यूज, इन 9 में से 8 वैल्यूज को आप इस टेबल में फिल करेंगे विद द कंडीशन कि आपका जो एवरेज हो जाए किसी भी रो का या फिर किसी भी कॉलम का वो इक्वल हो जाए। ये समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, तो अब एक छोटा सा काम करते हैं, ये सारी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। अपने पास वैल्यूज कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15, ये सारी वैल्यूज अवेलेबल है आपके पास। यस सर। और ये 13 वैल्यूज है जिनका सम कितना हो रहा है? एनीवन? 1 106। 106। ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर इस रो का और इस रो का एवरेज निकालोगे तो सेम आएगा, बराबर? यस सर। यस सर। और अगर एवरेज सेम आ रहा है तो सम भी सेम ही आना चाहिए, मतलब इसका अगर x है तो इसका भी x होना चाहिए, इसका भी x होना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इन 12 वैल्यूज को ऐड करके जो सम आ रहा है वो 3x होना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसका अगर y है तो इसका भी एवरेज y होगा, इसका भी y होगा, इसका भी y होगा। हाँ या ना? हाँ जी यस सर। सर। तो ये जो 12 वैल्यूज का समेशन है वो 4y भी होना चाहिए। हम्म। व्हाट आई मीन टू से इज कि 12 वैल्यूज का समेशन 3 का मल्टीपल होना चाहिए और ये 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? 12 का मल्टीपल है। 12 का मल्टीपल हो जाए। तो आप ऐसा चाहते हो कि 106 13 नंबर्स का टोटल है, इनमें से एक नंबर हटा दूं, 12 नंबर बचे और वो 12 का मल्टीपल बन जाए। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि 106 से नीचे 12 का मल्टीपल कौन सा आता है? 96। 98। मतलब इसमें से मेरे हिसाब से 10 हटाना पड़ेगा ताकि 12 का मल्टीपल रह जाए रिमेनिंग वैल्यू। हम्म। यस सर।
हटा दो, कोई दिक्कत है तो बोल दो। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो समझ में आ गया तो इतना सा बता दो कि ये नंबर 106 की जगह 101 बन रहा था, अब किसको हटाऊंगा? 5 5, 5 क्योंकि मेरे को 101 से 96 तक पहुंचना है, 5 हटाना पड़ेगा, 5 हटा दो। क्लियर है? यस सर चले आगे। यस सर यस सर Yes, sir. बढ़िया, नेक्स्ट बोलिए 6 के बाद। 7 बताने का है क्या किसी को? नो सर नो सर No, sir. इच्छा हो तो पूछ लेने का, नहीं तो आगे चलते, बोलो जल्दी से। डन, चले आगे। यस सर यस Yes, सर sir. बढ़िया, नेक्स्ट 9th किसी को बताना है? नो सर नहीं नो सर सर पक्का किसी का भी नहीं पूछने का है? No, sir. नो सर चलो बढ़िया, नेक्स्ट 11th किसी को बताना है? नो सर नो सर नो No, सर sir. नहीं। नेक्स्ट 12th किसी को बताना है? नो सर नो किसी को सर पूछने का है तो जल्दी पूछ लो। नो सर यस सर यस बताना सर है? हाँ सर क्या बात कर रहे हो? पूछ लो, चलो। कौन पूछ रही? सर मैं पूछ रही हूँ कम हो गया मैडम ऐसे। अच्छा क्वेश्चन है मैडम, पूछ लेना चाहिए। इससे पहले भी 3 क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने बेवकूफ की तरह मना कर दिया, पूछने वाले क्वेश्चन थे। खैर अब मैं नहीं बताऊंगा। If all the possible numbers that can be formed using the digits 0, 2, 9, 4, 7, 8 and 6, no repetition, are written in ascending order, what is the difference in the rank of the smallest 4-digit number starting with 24 and rank of largest 5-digit number that can be formed with given digits? एक छोटी सी बात बताओगे क्या? 2, 9, 4, 7, 8, 6 से टोटल कितने नंबर्स बना सकते हो विदाउट रेपिटेशन? सर 6 into 5 into 4 into 3 into 2 6 factorial हाँ 720। 6 सर 1 2 3 6 4 5 factorial सब का निकाल के ऐड कर देंगे एग्जैक्टली मैम, देखो 720 अगर वैल्यू होता तो आंसर 1079 कैसे आएगा? टोटली 720 नंबर बना सकता हूँ तो नहीं आएगा ना। अब ये क्यों हो रहा है उसका लॉजिक समझिए। आपको ऐसा नहीं बोला गया है कि 6 डिजिट नंबर बनाना है, समझ रहे हो? Yes, यस sir. सर आप 1 डिजिट नंबर भी बना सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6 कोई सा भी बना सकते हो। पहले तो निकाल लेते हैं 1 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 6 6 2 डिजिट नंबर, 30 3 डिजिट नंबर। जिसको देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता उसको नहीं समझ में आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। परम्यूटेशन 120 120। 4 डिजिट नंबर, 360 5 डिजिट नंबर, बोलो ना। 720 6 डिजिट नंबर। 720 चलो टोटल कितने नंबर हो गए? 720, 1440, 1800, 1920, 1950, 1956, 1956 हो गया क्या टोटल? यस सर Yes, sir. चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विद 24? यार देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो कम से कम 156 के बाद ही आएगा, यस और ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट वैल्यू क्या रखूंगा मैं? 2 देन 4 अब इसके बाद ये कोई सा भी नंबर हो, मेरे को तो यही नंबर कंसीडर करना है, यस सर और इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 157 ये समझ में आया? सर यस 150 एक बार फिर से बताना 156 नंबर्स इससे पहले आ चुके हैं जो कि 1 2 3 डिजिट के थे, हाँ यस सर तो इसकी रैंक 157 हो गई। हाँ या ना? हाँ तो सर बट लास्ट के 2 डिजिट तो अपन को पता ही नहीं ना अब वो जो भी हो सकते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग रैंक होगी ना इसकी तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? फाइंड द डिफरेंस इन द रैंक। रैंक में डिफरेंस बताना है, वैल्यू में डिफरेंस नहीं बताना।
ठीक है सर। समझ में आया? आगे इसकी रैंक पता चल गई, दूसरी देखते हैं। एंड द रैंक ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। या एक बात बताओ, जो सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर होगा उसकी रैंक मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? 1956 में 720 गए, 1200 36, 36. उसकी रैंक 1236 होगी, बोल सकता हूँ क्या? सर उसकी Yes, sir. स्मॉलेस्ट रैंक होएगी ना वो 5 डिजिट की सबसे बड़ी रैंक है, तो 6 डिजिट के नंबर से छोटी होगी। एक एक लेस होएगी। 6 डिजिट के टोटल 720 नंबर है, 1956 में से 720 इसके हैं। तो जो लास्ट वैल्यू आ रहा होगा इधर 1236 पोजीशन पे, वो आपका 5 डिजिट नंबर होगा। एंड 1237 ऑनवर्ड्स विल हैव योर 6 डिजिट नंबर। ये क्लियर है? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? इसका एक बार डिफरेंस निकाल के बताओ कितना आ रहा है? 1079. 1079 आ गया? दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए प्लीज। है क्या? No, sir. नो सर। बाकी क्या सो गए हो क्या? 22 में से 2 जने बोल रहे हैं, एक मेरे को और गिन दो, 19 जने बचे। यार जवाब दे दिया करो, रात के 10 बज सर रहे आ हैं। गया समझ, आ गया आ गया समझ, हाँ सर। सर, आगे तो आगे बोलने का है ना, आगे मेरे को सर। क्या पता चलेगा? समझ में आ गया? आ गया सर। हाँ आ गया। अभिषेक सर को समझ में आ गया, फिर तो तुम लोगों को आएगा ही आएगा। नेक्स्ट। 13. बताना है किसी को? No, sir. सर यस सर। हाँ, ले लेते हैं मैम 13 क्वेश्चन बताओ। 1,2 एंड 3,4 ए और बी दो सेट है। हाँ ए से बी तक कितने रिलेशन बना पाओगे? पहले तो ये देखते हैं ए से बी के मिक्स करके कितने सबसेट बन पाएंगे। 4 बन पाएंगे एक के। सर ये क्यों देखना है, मतलब सबसेट वाली चीज? 2 3। मैडम आपने रिलेशन पढ़ा नहीं ना अभी तक। हाँ जब सर। सबसेट बनेंगे उसी के बाद तो रिलेशन बनाऊंगा। रिलेशन कैसे बनाऊंगा बिना सबसेट के? हाँ जी सर। तो ये चक्कर है। 4 सबसेट बन गए, 4 सबसेट बन गए तो रिलेशन कितने बनेंगे? 2 की पावर 4. 16 आंसर है। तो ये सबसेट सर इन एक के है मतलब। सबका इन सबका थियरी पोर्शन में बाद में बताऊंगा जब फंक्शन रिलेशन पढ़ेंगे। हाँ ये ए के सबसेट नहीं है, ए और बी के जो कंबाइंड सबसेट बनेंगे उनका रिलेशन निकालेंगे ना ए से बी तक में। अच्छा हाँ ठीक है सर, गॉट इट। तो ये चीज है। 13 के बाद नेक्स्ट आउट 16th. बताना है किसी को? नो सर। No, किसका sir. नो सर। क्या भी नहीं है? पक्का चल सकते हैं आगे? Yes, sir. यस यस सर। सर। गोइंग अहेड प्लीज। नेक्स्ट 17. बताना है किसी को? नो सर। नहीं नो सर। सर। Sir, नेक्स्ट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना? मैम मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया, मैं रीड कर लेता हूँ। रेडियस ए बी of the outer circle is tangent to the inner circle at P, ठीक है। And the radii of outer and inner circles are 18 and 5, ठीक है। Okay, ठीक है। Find the ratio in which P divides the line segment AB। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला? Yes, sir. नो मैम, आई डोंट थिंक सो। आप क्या फॉर्मूला, मतलब देखिए अलग अलग केसेस बन सकते हैं। आप कौन सा फॉर्मूले की बात कर रही हैं? देयर इज अ थ्योरम जहाँ पे टेंजेंट और सीकेंट को रिलेट किया जाता है, आप उस थ्योरम की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ. तो वो इधर जो बैठेगा वो बता देता हूँ। लेट दिस पॉइंट, ये जो मेंशन नहीं है ना ये, ठीक है, जहाँ पे Sir. ए 80 है ना सर्किल को, इस पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूं कुछ भी एस। तो फॉर्मूला बैठेगा ए एस इंटू ए टी इक्वल टू ए पी स्क्वायर। ये फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम।
yes sir. लग जाएगा मैडम 100%, कोई दिक्कत ना है। Okay निकाल sir. लेंगे AS 80 AP की वैल्यू तो निकाल लेंगे। हाँ 80 की बताइए। सर, एक बार मैं क्वेश्चन करके फिर बताऊंगी। ठीक है मैडम, चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? शैल बी गो अहेड? यस सर। यस सर। नेक्स्ट Yes. 18। बताने का है? Yes, sir. ये sir. चलो पूछ लो। हम्म, एकदम सीधा सिंपल सा तरीका है, जो इच्छा है x की वैल्यू ले लो। सबसे इजी क्या रखूं? 0 तो अगर 0। x 0 है तो y क्या होगा? बाय 4 हो 4. जाएगा। -4। -4. प्लस माइनस 4। we'll have हाँ 0 4 and we'll have another point 0 0 माइनस -4। x को 1 रखा, अब y क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस 3। सिमिलरली ये +3 और ये -3 हो गया 1 पे। ये 1,3 1, -3। x को 2 रखो 3 रखो, x को 4 रख दो, y क्या आ गया? 0. 0 x को -4 रख दो, y क्या आ गया? 0. कहने से मेरा फिगर ऐसा कुछ बन जाएगा। यस सर। अच्छा, ये एक ट्राइंगल है क्या? Yes sir. हाँ Yes, sir. सर। ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाँ है ना? Yes, sir. ऐसे 4 ट्राइंगल है। हाँ सर। कोई दिक्कत है तो बोलो। No, नो sir. सर। Shall we go ahead? यस सर। नेक्स्ट 19। बताने का है? बताना है Yes सर। sir. हाँ सर बताने। यस सर। सर ये पहले टीएसडी का क्वेश्चन लग रहा था। पीएचडी का हाँ लग रहा था, लेकिन मैंने जज किया दो चीजों पे। एक तो यहाँ पे 2 डिजिट की बात कर रहे हैं और कहीं पे हाँ भी स्पीड की, डिस्टेंस की या टाइम की बात की नहीं गई है। इफ यू रिमेम्बर, एक क्वेश्चन कैट 2023 में आया था टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जहां पे पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन था, इनकेस अगर किसी को याद हो तो। यस सर। हाँ सर। ऑल्दो उसको हाँ अपन टीएसडी में डाल रहे हैं, लेकिन लॉजिकली वो टीएसडी का क्वेश्चन है नहीं मेरे हिसाब से। इट वाज मोर ऑन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। हाँ सर। तो ये मेरे हिसाब से वैसा ही कुछ है कि टीएसडी का है, बिकॉज बात कर रहे हैं ड्राइविंग की एंड ऑल, बट ये है नहीं, लॉजिकली नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। विल जस्ट चेक इट आउट। Santa Singh was driving a car at a uniform speed. He saw a milestone showing number XOY. सर ओ है क्या ये? X0Y। हाँ मैडम आप वो तो आजकल तो O ही बोला जाता है ना जेंजी वालों में। अरे सर कोई बात नहीं सर, बॉलून की बात थी ना। अरे सर ये 0 और O में कंफ्यूजन था, सबसे बड़ा मतलब। मैडम एक छोटा सा दिमाग लगाओ, अगर मेरे को इसको 3 वेरिएबल वैल्यू देना होता तो मैं XYZ नहीं लेता। हाँ मतलब ये मैं इलॉजिकल है ऐसा। अब आप मत बोलना कि सर फिर O तो ले ही नहीं सकता एज अ वेरिएबल। मैं दिमाग लगाने की बात कर रहा हूँ। यस सर, समझ गए। After traveling for an hour, he saw another milestone showing number YX. 1 घंटे में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और अब ये YX बचा था। After another hour, he saw next milestone showing the same 2 digit number in reverse order. मतलब इसके 1 घंटे बाद इसको XY दिखा, हाँ या ना? यस सर। Yes sir. यार एक बात बताओ, ये जितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करेगा उतना ही यहाँ पे नहीं करेगा क्या? Yes sir. 1-1 घंटा ही ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस सेम ही हम्म। रहेगा जब टाइम सेम है तो। हाँ Yes sir. सर। Yes, sir. मतलब इसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया D और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया D इक्वल है, मतलब मेरे हिसाब से तो AP बन गया। AP इसलिए Yes, बता रहा हूँ sir. क्योंकि आज ही पढ़ा है। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखो, क्या होगा? 100x + y। हाँ बोलता रहा तो समझ में आता है, समझ हाँ Yes, सर। sir. हाँ हाँ, sir. इसमें से 10y + x को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये समझ में आ गया कितना डिस्टेंस ने 1 घंटे में ट्रैवल किया, वो वैल्यू है। यस सर। और वैसे ही 10y + x में से सब्ट्रैक्ट कर दो आप किसको?
100 X sorry plus Y. 10x plus 10x plus y 10x plus y 10x plus y. सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या आएगा? 100x और ये 10x 99x y माइनस माइनस 9y इक्वल टू 10y प्लस माइनस y 9y x माइनस 10x माइनस 9x 108x इक्वल टू 18y। तो मेरे हिसाब से एक्स वाई का रेशियो आ गया 1/6। सर मेरे को एक डाउट है ये यस जो मैम। 10y प्लस x है ये 100y प्लस 10x क्यों नहीं है एज इन 0 जो है वो yx 0 भी तो हो सकता है। क्या वाई एक्स हो सकता है? जब एक्स और वाई लिखा है तो मैडम एक्स को 100 डिजिट लूंगा ना। हाँ सर ठीक है सॉरी अगर x अपॉन वाई 1/6 आ गया तो कैन आई हैव x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 6? Yes, sir. Yes, कैन sir. आई हैव Yes, x sir. इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 12? No, sir. बिकॉज एक्स वाई तो एक सिंगल डिजिट नंबर होगा तो वाई 12 कभी हो ही नहीं सकता। मतलब आप लास्ट में जो वैल्यू पे थे वो 16 था, इससे पहले आप 61 पे थे और इससे पहले आप 106 पे थे। तो आपने डिस्टेंस मेरे हिसाब से 45 का ट्रेवल किया हर एक घंटे में। Yes, sir. Yes, sir. ये स्पीड हो गई 45 की। एक घंटे में 45 ट्रेवल कर रहे हो तो 45 की स्पीड होगी ना। Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट हो तो बोलिए इस क्वेश्चन में। No, sir. नो सर बढ़िया बढ़िया। यार ये कितनी बैटरी बची है दिख ही नहीं रही है अभी तो पता चला। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट डाउट 20 बताना है किसी को? No, बता sir. दो सर। नो सर पूछ लो भाई। अच्छा है तो। यस मिस्टर वरुण, फॉर्मूला बताइए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का। ऐसा ये नहीं पता बस। So 180 degrees. फॉर Straight सर line. 180 n minus फिर 2. एक्सटीरियर तो 360 हो जाएगा ना। देखते हैं। There is a polygon of x sides in which sum of interior angle, sum of interior angle कोई तो बता रहा था, दिया बता रही थी अभी। हाँ सर 180 into n bracket n minus 2. Sum of interior angle is at most equal to sum of exterior angle. Exterior angle का sum 360 360. 1 2 n minus 2 equal to 2 n equal to 4। ये समझ में आया? आगे। पहली कंडीशन है, अभी तक आंसर नहीं है। n equal to 4 मतलब क्या होगा? इन ऑप्शन में ऐसे मत बोलना क्वाड्रिलेटरल Square. होगा, ऑप्शन Square. वो है है ना। लेकिन ऐसा बोल रखा है कि जो आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना दैट इज एट मोस्ट इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ज्यादा से ज्यादा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की इक्वल, इससे कम भी तो हो सकता है। हाँ सर तो n माइनस 2 लेस देन 2 n लेस देन 4। और अगर n लेस देन 4 है तो n कितना होगा? 3 3 क्योंकि 3 से छोटा तो ट्रायंगल पॉलीगन बनाएगा ही नहीं। तो Hmm. इधर यू कैन हैव अ स्क्वायर और यू कैन हाँ हैव। क्लियर है? क्लियर Yes. है। Yes, sir. नेक्स्ट 21 बताना है किसी को? Yes, बताना है yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये तो हो गया। देखिए, a set A is a set of 7 natural numbers that have at least 5 factors, and set B is a set of 7 natural numbers that have at least 6 factors. What will be the value of P plus Q, where P is the sum of all the elements of A and Q is the sum of all the elements of B? देखो जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना तो थोड़ी चीजें आपको समझ में आएंगी। आपको ऐसा बोल रखा है कि A में वो वैल्यूज लेनी है जिनमें कम से कम 5 फैक्टर्स तो होते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। 1 के 5 फैक्टर होते हैं क्या? नो सर 2 No sir. 3 नहीं 4 नहीं नहीं 5 नहीं 6 नो 6 के भी 4 ही होते हैं ना। 7 नो, 8 नो, नो 9 नो नो, 10 no. नो
11, नहीं, No. 12, यस, yes. 12 के 6 फैक्टर होते हैं, तो एटलीस्ट 5 वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई करता है। Hmm. 13, No. No. 14, नो, no, Mm, 15, नहीं. no. 16, No. yes. No. 16 हाँ के सर 5 फैक्टर 16 होते हैं। होगा 17, no. 18, Yes. yes. 19, नहीं, No. 20, Yes. 20 के होते हैं क्या? 1 2 4 5 10 20, हाँ ठीक है। 21, No. 22, No. 23, No. 24, Yes. Yes. 25, No. 26, नहीं, No. 27, No. No. 28, Yes. यस, 29, No. नहीं 30, Yes. यस, Yes. वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 6 7। अब इनमें से हटाना किस किस को है? 12 के कितने फैक्टर हैं? है 6, तो Six. 12 को भी बी में तो लेना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 6 फैक्टर्स वालों को लेना है। 16 के हाँ 5 फैक्टर है, हटा दूं? हाँ हाँ, 18 के मेरे हिसाब से है ज्यादा है, 1 2 3 6 9 छः। 12 6 हैं। 6. 18 के बाद 20 के भी 6 हैं। है 24 के भी आई गेस हैं। 8 है 28 के हैं, 6 फैक्टर्स हैं। ऐसे 28 के हैं ना, 1 2 हाँ. 4 7 14 28। और 30 के हैं, बस एक नंबर और एक्स्ट्रा आएगा, वो कौन सा आएगा? 31, नो 32, यस, 32, क्योंकि 32 के 6 फैक्टर्स होते हैं। इन सबको ऐड करो, कितना होता है? 12 और 16 28, 28 और 18, जल्दी बोलो। 312 होगी सर दोनों सेट का 46, इन सबको जोड़ जाड़ के 312 आ रहा है क्या? आ रहा है सर आ गया आंसर। कोई दिक्कत? नहीं No, sir. नहीं, No, No. sir. कंप्लीट है ये टेस्ट? कंप्लीट है ना? हाँ सर, चलो बढ़िया। So with this we are done with the discussion of mock CAT 2 quant section.